जिंदाबाद करें, बुलाए हुए स्वामी की जो सियासत हो रही है हिंदुस्तान में और कर्नाटक में और जहाँ कहीं भी बीजेपी की हुकूमत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जब देवराजीवनहल्ली और केजीहल्ली में 3 घंटे के वाक़े की वजह से 470 पर 6 केसेस आप डालते हो। हो नहीं रहा है, देश का जीडीपी कम होते जा रहा है, रोज आज हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान सभी सुबह शहनाई से विश्व ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಎತ್ತಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು RSS ಇರ್ಬೋದು, ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಮತೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೇ ನಾದನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಶಾಕ್ ಸೇಠ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ತಂದುಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಬಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೋನಾ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ? ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಡ್ಕೋಬೇಕು? ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಬಡವರನ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡವರನ್ನ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳವರು ಬಲಾಢ್ಯರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಮತೀಯ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರು ಕರಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವವರ ಮೇಲೆ UAPA ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲ ನಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಾವು ಕಡಿತೀವಿ ಬಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿತೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಸಾಧ್ವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಧರ್ಮದಾಸ್, ಸಿಂಧು ಸಾಗರ್, ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು UAPAನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂಧಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೋ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಕೆರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ವಾಸಿವಾರ್ಯ ರೋಗನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನುಜ ಧರ್ಮ ಅಲ್ವೇ ಪಥ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ. ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ. संविधान का जो वोट लेकर जो अपनी हुकूमत चलाता है, लेकिन संविधान को धिक्कार करते हुआ एक तरफ रखकर ये लोगों की तरफ इतना बड़ा हादसा ये मुल्क में गुजरा
आज का अखबार में भी आप देखे होंगे 100 मिलिट्री वाले 100 मिलिट्री ऑफिसर्स आज उसके खिलाफ बोले, जो वहाँ पे जो धर्म संसद में जो बात किए हैं उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे हैं 100 मिलिट्री ऑफिसर्स और एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी यूपी में त्यागी को खत लिखे हैं। ये कितने दिन ऐसे बोलते रहेंगे? एक साल इलेक्शन है, 3-4 महीने इलेक्शन है यूपी का, ये इलेक्शन तक और अभी ज़्यादा बोलेंगे, थोड़ा नहीं अभी बहुत से ज़्यादा बोलेंगे। इनका मकसद इतना ही है कि हमारे क्रिश्चियनों को, माइनॉरिटीज़ को गाली गलौज करो और दूसरी कम्युनिटी को एक करके वोट बटोरने की कोशिश करो, बस इतना ही। लेकिन मेरे हिसाब से लोग बहुत बेजार हो गए हैं। 7 साल से क्या क्या ये लोग क्या क्या काम किए हैं, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, ये तमाम लोग भी हिंदू ही हैं। इनको भी क्या काम किए हैं, इनका क्या क्या अच्छा किए हैं सब मालूम है। हज़ारों के लोग यूपी में जो गंगा नदी में अपने मुर्दे बहा कर चले गए, ले जाने वाले नहीं रह सके। ऐसा हमारे लोग इसमें खासकर माइनॉरिटीज़ के जो लोग खिदमत किए हैं कोविड के टाइम पे, जो लोग सब कोई भी कास्ट का आदमी को मर जाता है उसको नहीं उठाते थे चंद लोग, उसको हमारे बच्चे ले जाकर उनके तरीके से कफन दफन किए हैं। अभी ऐसे बहुत से हमारा मकसद ही ऐसा है कि कौम की खिदमत, हर एक ज़ात की खिदमत करना, इसमें हमारे लोगों का ऐसे इस्लाम बढ़ा है, ऐसे क्रिश्चियनिटी बढ़ी है, खिदमत के हिसाब से बढ़ी है। ये ऐसे द्वेष, ऐसे गलत बातें करते हुए, ऐसे वैसे स्पीच करते हुए 20 लाख लोगों को मारने की इनकी हैसियत है, मार सकते हैं। 20 झुंगुर मारने होता है लोगों को, 20 झुंगुर बेकार के बातें ऐसे करके लोगों के वोट बटोरने के लिए ये नंबरी की साजिश करते हैं। इसलिए मैं आज के ये जो जलसा आज हुआ, आज हमारा जो विजिटेशन हुआ, ये पूरे स्टेट वाइज हुआ है, सिर्फ यही नहीं, पूरे स्टेट वाइज विजिटेशन हुआ है। और सब तरफ भी हम लोग इसका ये मेमोरेंडम जो है वहाँ के डीसी की तरफ से गवर्नर को भेजे हैं। एंटी कन्वर्शन बिल जो ला रहे हैं ये खासकर मुसलमानों से ज़्यादा क्रिश्चियनों को टारगेट करके ये बिल लाई जा रही है। मैं समझता हूँ क्रिश्चियन आज़ादी के बाद, आज़ादी हिंदुस्तान को पहले 75 साल हो गए, जब आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त जो है क्रिश्चियनों की जो तादाद थी वो 2% थी, आज 2.5% है। अगर कन्वर्शन हो रहा होता फोर्सफुली तो 2% 20% होना चाहिए था। ये महज उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने के लिए 7 साल से 2014 से नरेंद्र मोदी और योगी की जो हुकूमत यूपी में है उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तमाम बिल लाए जा रहे हैं। ये मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके सियासत कर रहे हैं। इनकी कामयाबी, ये सब नाकाम हो गए, इनका डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है, देश का GDP कम होते जा रहा है, रोज़ आज हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं ये लोग भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये सिर्फ माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमान और क्रिश्चियन को लेके सियासत कर रहे हैं। ये आज लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, क्योंकि आज जो इनके जो जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, हेट स्पीचेस आ रहे हैं, ये हमारी सरकार के बहरे कानों पे पड़ रही है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। आप कोई एक स्टेटमेंट देखते हैं इनके खिलाफ, हमारे PM रहने दो या फिर होम मिनिस्टर रहने दो, ये लोग स्टेटमेंट ही नहीं देते। इनको गिरफ्तारी करने के लिए, इनको इसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक आवाज़ नहीं उठाते। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? हिंदुस्तान को एक गुलिस्तान है, इसको बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये आज लोग समझ गए हैं, इसको बिल्कुल इनको सबक सिखाने वाले हैं। आज हमारा जो ये एंटी कन्वर्जन बिल हो, चर्चेस के ऊपर अटैक हो, ये जो भी कर रहे हैं इसकी हम मजम्मत कर रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान क्रिश्चियन करके नहीं है, ये जो सेक्युलर हिंदुस्तान है और जो भी है सब सारे हिंदुओं भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये बात आप सबको दिखाई देगी। आज हिंदुस्तान को ये चीज़ से, नफरत के बीच से आज बांटा नहीं जा सकता। आज हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत से चलने वाला है, पहले से भी चल रहा था, आज इसकी ज़रूरत है मोहब्बत की। इंशाल्लाह यह मोहब्बत का परचम फिर से हिंदुस्तान में लहराएगा। बीजेपी को धूल चटाएंगे इंशाल्लाह, हम नहीं चटाएंगे,
आवाम चटाएगी। जिस तरीके से हरिद्वार के इशू में उत्तराखंड के अंदर लोगों ने रास्ते में बैठकर ओपन चैलेंज किया कि भाई देखो हमारे पास तलवार नहीं, हमारे पास चाकू नहीं, हमारे पास छुरी नहीं, हम यहाँ पर तैयार बैठे हैं, आइए, अगर आपसे हमारी कुर्बानी से आप लोगों को फ़ायदा होता है तो हम कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं। तो कोई भी मतलब आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट से फिर कहना चाहूँगा, आप जिस तरीके से हमारे साथ सलूक कर रहे हो इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जब देवर जीवनहल्ली और केजी हल्ली में 3 घंटे के वाक़े की वजह से 470 पर 6 केसेस आप डालते हो, 146 लोगों को यूएपीए के अंदर डालते हो, जब इतना बड़ा हादसा स्टेट के अगेंस्ट होता है, स्टेट का फ्लैग जलाया जाता है और शिवाजी की तस्वीर और संगोली रायना की तस्वीर पर हमला होता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि आपका नज़रिया सिर्फ एक कौम के ऊपर है। आपको इस नज़रिए को बदलना होगा, वरना इसके असरात बहुत संगीन असरात होंगे। हमारा भारत देश का महान है, लेकिन दक्षिण कन्नड़ है, मेरा दक्षिण कन्नड़, मैं दक्षिण कन्नड़ वाला हूँ। दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक में भी है, बनारस में भी है भाई साहब। बिस्मिल्लाह खान सभी सुबह शहनाई से विश्वनाथ को सुप्रभात करता था। बिस्मिल्लाह खान साहब हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक, सभी म्यूज़िक हिंदुस्तानी म्यूज़िक मुसलमान उस्ताद का साथ में है। और दक्षिण कन्नड़ में क्या होता था, सभी टेम्पल चैरियट ने ना रथ, उसका अलंकार वगैरह वगैरह मुस्लिम भाई ने करता था। सभी फूलों अलंकार फूलों क्रिश्चियन बहन में देता था। ये सामरस्य अभी भी कर्पूर है, कुमकुम है, आरत है, ब्रास वगैरह मटेरियल है, ये कौन करता है? मुस्लिम ब्रदर्स आर स्किल्ड लेबर, दे आर स्किलफुल लेबर, दे आर स्किल्ड, दे आर आर्टिसans, दे आर आर्किटेक्ट्स, दे डू इट। And without knowing all these things, now what is happening in the world you don't know. The world is becoming one today. You are trying to divide it. Our technology has brought everybody together. Mobile has brought us together. Our dress has brought us together. Our food habits have brought us together. And today what you are doing, you are trying to destroy. In food there is no religion today. Everybody eats in everybody's house. Everybody's marriage, everybody goes. Everybody socially gather. Why are you dividing? Why are you building walls? And it's only political. It is a cruel political game and game for power.